बच्चे वी वर डूइंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड कल अपन स्टार्ट किया CFT, ठीक है, एंड वी डिड CFT इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਜਾਂ ਆਇਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਇਨਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ 3D ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ 3D ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ ਦੇ ਸਪਲਿਟ ਇਨਟੂ ਟੂ ਸੈਟਸ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਸੈਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਬਾਈ 2/5 एंड एक हायर सेट जिदे विच एनर्जी इंक्रीजेस बाय 3/5, ठीक है, मतलब एक जो एवरेज एनर्जी है उस तो एनर्जी डिक्रीजेस बाय 2/5, तो उस सेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ T2G ऑर्बिटल्स, एंड एक सेट ऑफ हायर एनर्जी जिथे एनर्जी इंक्रीजेस बाय 3/5 जिदे विच दो ऑर्बिटल सीगे एंड दे वर कॉल्ड EG ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर अपन ने कीता सी कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ upon the field strength of ligands। जो strong field ligands होंगे they will cause greater splitting। जो splitting ज़्यादा हो जाएगी तब pairing होएगी and अपने को low spin complex बनेगा, inner orbital complex बनेगा with a hybridization of D2sp3। जो अपने को weak field ligands होंगे ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ splitting ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, electrons can easily go into the EG orbitals, तब पेयरिंग नहीं होएगी, अपने को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा विद अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3d2। फाइन। सो आज बच्चे अपन ने अच्छा फिर अपन ने कल टर्म की थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना, CFSE, CFSE, फाइन, ठीक है। सो ये अपन ने किया सी कि द एनर्जी डिफरेंस जो क्रिएट होता है ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द T2G and EG sets of orbitals is known as crystal field splitting energy। and then we did Barry center rule जिस च अपन ने कीता सी कि the average energy of the system remains constant, fine, remains preserved, conserved, जो मर्जी, ठीक है ना। आज बच्चे अपन ने करना है कि अपन crystal field splitting energy कैलकुलेट किवें करते हैं, ठीक है ना। So how do you calculate the crystal field splitting energy? So देखो इसका फॉर्मूला की है, कुछ भी नहीं है बच्चे। So देखो ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 3D orbitals ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਟ ਲੋਅਰ ਸੈਟ T2G orbitals ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ એનર્ਜੀ will get lowered by 2/5 of delta naught, ठीक है। डेल्टा स्टैंड्स फॉर CFSE splitting ਤੇ O stands for octahedral, ठीक है। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ EG orbitals, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ એનર્ਜੀ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 3/5, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ -0.4 into x plus 0.6 into y, इस सारे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ with delta naught। so this is your crystal field splitting energy ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ delta naught ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 0.4 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਬੱਚੇ, 0.4 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ 2/5 ਤੋਂ, ठीक है। सिंस ये 2/5 में डिक्रीज करती है तो अपन अगे नेगेटिव लगाता। 0.6 किथों आया 3/5 तो इट इंक्रीजेस बाय 3/5 तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। सो नो नीड टू क्रैम द फार्मूला, ठीक है। नाउ इथे x पे y की है, x एंड y की है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G orbitals, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG orbitals। सो यहां पर लिखेंगे x is equal to number of electrons in T2G orbitals, y is equal to number of electrons in EG orbitals। फाइन रजे, ठीक है। ਹੁਣ देखो सो मेरे नाल नाल तुसी ये कैलकुलेट करनी है ताकि तुहानू एक आइडिया लग जाए कि किवें करना है, ठीक है ना। सो देखो
क्लियर आगे बढ़ते। सो अगर अपने कोल 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D इज 1, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो पहला इलेक्ट्रॉन था ਇੱਥੇ जाऊगा, ठीक है। सो अपनी CFSE कितनी आऊगी, -0.4 into 1 plus 0 into delta naught, so answer will be -0.4 delta naught। आई होप कि ये समझ आ गया बच्चे सब लोग, ठीक है ना। पहला इलेक्ट्रॉन T2G ची जाऊगा ना, सो x की वैल्यू 1 आ गई, सो -0.4 into 1, ये तो 0 ही है क्योंकि y वाले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्लियर है, ठीक है। नाउ अगर अपनी 3D की कॉन्फ़िगरेशन 2 है, मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन है 3D च, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ਇੱਥੇ जाऊगा, अगेन आवले ऑर्बिटल्स खाली है, सो -0.4 into 2, सो अपनी CFSE कितनी आऊगी, -0.8 into डेल्टा नॉट। बच्चे पहले कह रहे हैं ना, ठीक है। आगे देखो, अगर अपने कोल कॉन्फ़िगरेशन इज 3D3, तब तीसरा इलेक्ट्रॉन अगेन विल गो हियर, ठीक है, तो अपनी CFSE कितनी आऊगी, -1.2 डेल्टा नॉट, क्योंकि x की वैल्यू कितनी हो चुकी 3, सो -0.4 into 3 plus 0, क्लियर है। नाउ हुन बच्चे अगर अपने कोल 3D4 है, नाउ इफ वी हैव 3D4, तो हुन अपने कोल दो पॉसिबिलिटीज हो गया। 3D4 दे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इलेक्ट्रॉन ਇੱਥੇ पेयर अप हो जाए या ਇੱਥੇ चल जाए, ठीक है ना। पेयर अप कदों ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। अनपेयर्ड कदों रहंदा ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ वीक लिगेंड है। सो ਜਦੋਂ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, सो देखो हुन पहला केस ਜਦੋਂ अपने को लिगेंड की हो जाएगा बच्चे स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ਦੇ केस कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि वो ਇੱਥੇ पेयर्ड अप हो जाएगा। मेरी गल समझ गए ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ਦੇ केस ਇੱਥੇ पेयर अप हो जू, सो ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ T2G है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो -0.4 into 4 अपने को कितना आ जाएगा, -1.6 डेल्टा नॉट। आई होप फॉलोड बच्चे, ठीक है। हुन अगर द लिगेंड इज वीक, सो अगर अपने को वीक लिगेंड है, फाइन, अगर अपने को वीक लिगेंड है, हुन देखो बच्चे वीक लिगेंड दे केस की होगा 1 2 3 एंड 4, सो उत्थे की बन जाएगा -0.4 into 3 प्लस 0.6 into 1। मेरी गल समझ आ गई कि नहीं, 0.4 into 3 आ जाएगा, तो 0.6 into 1 यानी कि -1.2 प्लस 0.6, सो आंसर आ जाएगा -0.6 डेल्टा नॉट। बच्चे ये फॉलोड के नहीं, ठीक है ना, और क्लियर है कि नहीं, ठीक है। एक होर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सॉल्व करवा देना है, उस तो मुड़ के तुसी कर सकते हो, ठीक है। सो देखो हुन आपां नूं आंदा है 3D5 ਲਈ, आपने को 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो पूछा गया कि इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अपने को अगर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग, बच्चे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो देखो 3 ਇੱਥੇ, चौथा ते पंजवां पेयर अप हो जाएंगे, सो -0.4 into 5 यानी कि -2.0 डेल्टा नॉट, क्लियर। अगर लिगेंड इज वीक, अगेन अगर एक वीक लिगेंड है तो पंजवां इलेक्ट्रॉन ਇੱਥੇ जाऊगा, ठीक है। तो हुन अपनी CFSE कितनी आएगी, -0.4 into 3 प्लस 0.6 into 2, सो -0.4 into 3 कितना होता है 1.2, 0.6 into 2 भी कितना होता है 1.2, यानी कि CFSE की वैल्यू एवरेज कितनी आ गई बच्चे 0। क्लियर है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन ਆਪਾਂ सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरी विच बच्चे CFSE पूछे जाने के चांसेस आर वेरी ब्लीक, ठीक है, बट MCQs दे विच एक क्वेश्चन कॉमनली पूछा गया, ठीक है ना।
to calculate the CFSE. And again I repeat कि since इस बार तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 marks ਦੇ short MCQs type questions आने हैं, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ इदां ਦੇ questions भी prepare करने पैणगे, ठीक है ना? Now, so this completes the crystal field splitting in case of octahedral complexes बच्चे, ठीक है ना? हुण ਆਪਾਂ crystal field splitting करते हैं in case of tetrahedral complexes. बस कुछ नहीं है बच्चे, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का क्वेश्चन आऊगा, क्वेश्चन तो अपन ऑक्टाहेड्रल भी आऊगा, ठीक है ना? बट स्टिल अपन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल ते स्क्वायर प्लेनर दे केस स्प्लिटिंग कितना होती है, अदरवाइज क्वेश्चन आने दे चांसेस आर वेरी 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 ब्लीक. ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥਿਉਰੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਟੈਟਰਾहेड्रल ਤੇ ਸਕੁਆयर ਪਲੇਨਰ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? बट स्टिल फिर भी आप कवर अप कर रहे हैं. अगेन द रीजन बीइंग कि पैटर्न ऑफ द एग्जाम हैज बीन चेंजिंग, ठीक है ना? एंड मोर ओवर थोड़ा सिलेबस घट चुके हैं हुन, ठीक है, नियरली 25 to 30%, बट क्वेश्चन उन्ने ही मार्क्स दे आने हैं 70 मार्क्स, ठीक है ना? तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ पोर्शन बच गया ਉਸ ਨੂੰ थॉरोली कवर करना पड़ेगा क्योंकि उसे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 70 मार्क्स आऊगा, ठीक है ना? सो देखो मुझे नेक्स्ट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. In tetrahedral complexes ठीक है? बस सिर्फ तुझे की याद रखना है, मैं सुनो मेजर पॉइंट्स लर्न करवा देना है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट, स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड, जेड़ा मेन पॉइंट है. स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड, इहदा मतलब की है? स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड का मतलब कि these are your 3D orbitals, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਗੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਪਰੋਚ. ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲਿਗੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 4. ਟੈਟਰਾहेड्रल ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ. ਸੋ ਲਿਗੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਗੈਂਡ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਸ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋਊਗਾ. ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ? 3 ਨੀਚੇ ਸੀਗੇ, 2 ਉੱਪਰ, 2 नीचे 3 ऊपर. इनका दी एनर्जी विल सेम इंक्रीज बाय 2/5 डेल्टा नॉट. इनका दी एनर्जी विल डिक्रीज बाय 3/5 डेल्टा नॉट, ठीक है? सेम ही ऑर्बिटल्स दे नेम्स होंगे dxy, dyz, dzx ऊपर चले जाएंगे, dx2, y2, dz2 नीचे आ जाएंगे. These are called e orbitals and these are called t2 orbitals. बच्चे in case of coordination number 4 अपन g subscript हटा देने होंगे, ठीक है ना? The g subscript is removed. इनका दी एनर्जी will decrease by 3/5, इनका दी एनर्जी will increase by 2/5, ठीक है? हुन अगर देखो बच्चे, हुन अगर आप CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का फार्मूला इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल बनाना होवे, अगेन आई रिपीट की क्वेश्चन तो होगा नहीं, बट स्टिल अगर फार्मूला बनाना होवे तो फार्मूला की बनेगा 0.4x, क्योंकि इथे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सो ये पॉजिटिव है, माइनस 0.4x माइनस 0.6y into delta t. फाइन. T stands for tetrahedral. फाइन, ठीक है? सो जे अपन ने फार्मूला करना होवे, वैसे अपन ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, मतलब जस्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फार्मूला ਦੀ फॉर्मुलेशन दसी है कि कितना होएगी, ठीक है ना? So this is about the splitting in case of tetrahedral complexes कि ਇਹ इनवर्स splitting ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ EG orbital ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ T2G ਸੀ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ, but yes the magnitude will remain the same. Energy will increase by 2/5, energy will decrease by 3/5, and sorry इथे delta t लिखो बच्चे क्योंकि टेट्राहेड्रल हो गया. एंड आप सबस्क्रिप्ट g है जेड़ा उसको रिमूव कर देंगे, इन्हां दा नेम रह जाऊगा T2, इन्हां दा नेम हो जाऊगा ओनली E. फाइन. एक दो पॉइंट्स हो रहा है जेड़े मैं तुहानू दसदा है. हां जी. सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपने इस दे विच करना है,
जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है बच्चे ਉਹਦੇ केस ਜਿਹੜੀ स्प्लिटिंग होगी वो बहुत घट होगी। कितनी होगी? मतलब अगर आई मान के चलो कि सेम लिगेंड हो, देखो बच्चे ध्यान ना सुनो, लेट इट बी अपने को एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट एमोनिया 6 3+, फाइन, ठीक है, 4+ कर लो, इनफैक्ट नहीं 2+ कर लो, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट में 2+ रखी है, कोबाल्ट एमोनिया 4 2+। सो देखो सारा कुछ ही सेम है बच्चे, ठीक है ना, मेरी गल समझ गए ना कि सारा कुछ सेम है। थे अपने को कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, अपने को लिगेंड भी सेम है, ठीक है। हो सकता है लिगेंड आप मतलब जस्ट हाइपोथेटिकली मान के चल रहे हैं, सपोज दिस इज टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है जो आप बना के देखेंगे, बट आप एक बार लेके चल रहे हैं कि बाकी सारे फैक्टर सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, ਉਹਦੀ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगेंड सेम है, सिर्फ की फर्क है ਇਹਦੇ 6 लिगेंड्स है, ਇਹਦੇ 4 लिगेंड्स है ना। सो बच्चे ਜਿਹੜੀ स्प्लिटिंग नीचे वाली केस ਚ ਹੋਊਗੀ, अगर ये टेट्राहेड्रल है, ਜਿਹੜੀ स्प्लिटिंग ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, that splitting will be nearly half as compared to the octahedral complex। ਤੇ एग्जैक्ट कितनी ਹੁੰਦੀ है? So splitting in case of tetrahedral complex is equal to 4/9 as compared to the splitting in case of octahedral complex। So बहुत घट splitting होगी बच्चे tetrahedral के केस च as compared to octahedral, ठीक है। So जो splitting घट होगी तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, देखो बच्चे अगर splitting घट होगी तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली गो टू द अपर ऑर्बिटल्स, यानी कि उन्होंने पेयरिंग होने के चांसेस की होंगे घट, अनपेयर्ड रहने के चांसेस की होंगे ज्यादा। सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस are mostly high spin complexes। सो ਜਿਹੜੇ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ने वो ज्यादातर हाई स्पिन होंगे ने, ਆਪਾਂ ਨੂੰ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बहुत घट मिलणगे। बच्चे पॉइंट समझ आया कि नहीं? देखो जो स्प्लिटिंग घट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली गो टू द अपर ऑर्बिटल्स, जो अपर ऑर्बिटल्स पहुंच जाएंगे तो उन्होंने नीचे पेयरिंग घट होगी, जो पेयरिंग घट होगी तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, यानी कि अपने को कॉम्प्लेक्स जेड़ा हैगा वो पैरामैग्नेटिक ते हाई स्पिन बनने के चांसेस विल बी ज्यादा। डन? क्लियर? नाउ सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जेडे कि अपन ने याद रखने होंगे ने इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, इन केस ऑफ स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। हुन मैं जस्ट सुनू करवाऊंगा स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जेडी की लीस्ट आने दे चांसेस है, बट स्टिल आप एक बार कर लेने कि स्प्लिटिंग हुंदी कितना है, ठीक है ना। सो देखो स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ना होते, सो स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेस्ड अपॉन splitting of octahedral complexes। so ये लगभग octahedral complexes तो ही डिराइव होती है। फर्क की है बच्चे, बस सिर्फ इन्नी चीज अपन ने ध्यान रखनी है जो मैं हुण बोर्ड पे थोड़े मूरे बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस तो अलावा अपन को होर कुछ नहीं आऊगा, ठीक है। सो देखो अपने को दीज आर योर 5 3D ऑर्बिटल्स, लिगेंड इन्हों अप्रोच करूंगा, अप्रोच करने तो बाद ये दो सेट्स टूटेंगे, नीचे T2G ऊपर EG ऑर्बिटल्स। सो हम तक तो सेम है सारा कुछ। ऑक्टाहेड्रल्स भी अपन इदां करते सी, ये किहड़े-किहड़े है DXY YZ ZX DX2 Y2 and DZ2।
फाइन। हुण की होएगा, हुण इन्हां दी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी। हुण इस तो बाद इन्हां ऑर्बिटल्स दी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी। सिर्फ बस इतना की याद रखना है, सब तो लोअर एनर्जी दा आपां नूं मिलेगा दो ऑर्बिटल्स डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक है। उस तो ऊपर होगा बच्चे डी जेड टू, उस तो ऊपर होगा डी एक्स वाई इथों वाला, एंड सब तो उत्ते होएगा डी एक्स टू वाई टू। सो दे विल फर्दर स्प्लिट लाइक दिस। सो ये दोनों इधर और जेडे आ दोनों है इधर ते इधर, ठीक है। सो दिस इज द स्प्लिटिंग इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बच्चे, ठीक है ना। बस सिर्फ इतना की अपन ने ध्यान च रखना है, नथिंग मोर इज नीडेड, ठीक है ना। क्वेश्चन अपन आएगा ही, क्वेश्चन अपन ऑक्टाहेड्रल के ऊपर बेस्ड ही आएगा, ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, बट स्टिल अपन एक बार कवर कर लिया ताकि इन केस ਉੱਥੇ ਕੋਈ क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट अपन ਨੂੰ पता होवे, ठीक है जी। सो दिस कंप्लीट्स योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर complexes. Now come on to the next topic, factors affecting the crystal field splitting. A important है बच्चे, ठीक है ना। Factors affecting crystal field splitting. So write down factors affecting crystal field splitting. So बच्चे splitting जो होएगी, ठीक है, d orbitals दी in the presence of the ligand, वो किस पे डिपेंड करेगा। देखो दो चीज़ों पर डिपेंड करूंगा ही करूंगा ना। स्प्लिटिंग होनी किदी है, मेटल दी, ठीक है ना, करनी की है लिगेंड ने। सो दो चीज़ों पर डिपेंड करूंगी, एक टाइप ऑफ लिगेंड, एक टाइप ऑफ मेटल एटम। सो फर्स्ट इज टाइप ऑफ लिगेंड। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ द लिगेंड। सो ये आप कर चुके ऑलरेडी कि जेडे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंदे ने वो ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करते हैं, जेडे वीक फील्ड लिगेंड्स है वो घट स्प्लिटिंग कॉज करते हैं। ते केड़ा लिगेंड मैक्सिमम केड़ा मिनिमम स्प्लिटिंग करूगा वो अपन पूरा दा पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज च मेंशनड है, वो मैं तुहानू कल करवाया सी, ठीक है ना। सो फर्स्ट फैक्टर इज टाइप ऑफ द लिगेंड। जिन्ना अपना लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर 2, नेचर ऑफ द मेटल। नेचर ऑफ मेटल, फाइन। अच्छा, नाल आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अपने को एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट साइनाइड 6 3 माइनस, एक अपने को कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट एमोनिया 6 3 पॉजिटिव। सो दोनों विच बाकी सब कुछ सेम है, दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, दोनों विच कोबाल्ट इज द मेटल एटम, दोनों दे विच कोबाल्ट दी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों च +3 है, बट इथे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी क्योंकि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड, फाइन। नाउ नेचर ऑफ द मेटल। नेचर ऑफ द मेटल दे ऊपर स्प्लिटिंग किवें डिपेंड करदी है कि विद इन अ ग्रुप जदों आपां नीचे आने हैं, ठीक है, विद इन अ ग्रुप जदों आपां नीचे आवांगे, ठीक है ना, लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है ना, जदों आपां एक ग्रुप च नीचे आवांगे तो बच्चे स्प्लिटिंग है जिहड़ी वो 30 to 50% इंक्रीज कर दी जाऊगी विद ईच फॉल इन द मतलब पीरियड, ठीक है ना। जिवें जिवें आपां ग्रुप दे विच इदां नीचे आई जावांगे, 4th पीरियड तो 5th पीरियड, 5th पीरियड तो 6th पीरियड एंड सो ऑन, 30 to 50% स्प्लिटिंग इंक्रीज करोगी। सो स्प्लिटिंग increases by 30 to 50% in a group, fine। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ एग्जांपल लिख सकते हैं, ਜਿਵੇਂ ਕਿ निकल प्लैटिनम पैलेडियम ਇੱਕੋ ग्रुप ਦੇ ਹੈਗੇ। सो splitting in case of like ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ complex ਹੋਵੇ platinum ammonia 4
2+ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਨਿਕਲ ammonia 4 2+. फाइन, ठीक है जी, डन. नेक्स्ट फैक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम. So splitting is directly proportional to oxidation number. ठीक है. So suppose मेरे को एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट एमोनिया 6 3+ ते एक कॉम्प्लेक्स है बच्चे कोबाल्ट एमोनिया 6 2+. सो दोनों में सेंट्रल मेटल एटम सेम है, लिगेंड सेम है, बट इथे कोबाल्ट +3 है, इथे +2 है. सो स्प्लिटिंग इथे ज्यादा होगी. ठीक है. नंबर 4 जो अपन ने आज कवर कर ही लिया, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. नंबर 4 इज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. वी नो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले जस्ट 4/9 स्प्लिटिंग होती है बच्चे. ठीक है ना. स्प्लिटिंग इन केस ऑफ अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 4/9 एज कंपेयर टू द स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सो बच्चे दीज आर द 4 फैक्टर्स जिन्हां दे ऊपर अपने मेटल एटम दे जिहड़े d ऑर्बिटल्स है उन्हां दी स्प्लिटिंग डिपेंड करदी है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द लिगेंड. स्ट्रॉन्गर इज द लिगेंड, मोर विल बी द स्प्लिटिंग. नेचर ऑफ द मेटल ग्रुप विच जिवें जिवें नीचे जाई जाओगे स्प्लिटिंग बढ़ती जाएगी बच्चे. ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, ग्रेटर इज द स्प्लिटिंग. एंड ज्योमेट्री, splitting is nearly double in case of octahedral complexes. The exact value की है tetrahedral की splitting is 4/9 as compared to the splitting in case of octahedral complexes. Fine बच्चे. सो बच्चे अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दोनों कंप्लीट कर ले. ठीक है. मतलब बॉन्डिंग ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ VBT ਐਂਡ CFT. अगेन आई रिपीट कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ मैग्नेटिज्म, हाई स्पिन, लो स्पिन, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, इन्हां दोनों ਦੇ बेस ਤੇ कुछ ना कुछ क्वेश्चन ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ VBT ਦੇ बेस ਤੇ ਜਾਂ CFT ਦੇ बेस ਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਹਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦੇ ਕਲਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ बेस ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ आफ्टर योर टेस्ट, जो अपना टेस्ट हो चुकूगा इत्थों तक के पोर्शन च. उस तो पहला आपां एक होर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है जिसनों आपां इंट्रोड्यूस पहला कर चुके. सो हेडिंग दो बच्चे, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स. बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स. सो बच्चे अपने कोल मेटल कार्बोनाइल्स की होंदे ने, देखो जिवें कि जिन्हां च कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज द लिगेंड. सो लिगेंड का काम कौन कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड. ये एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है. होमोलैप्टिक तो समझ लो ना, अपने किते हुए ने होमोलैप्टिक किहड़े सी, जिन्हां विच the same types of ligands are there, है ना. अलग अलग ligands नहीं होंगे. तो ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ कार्बन monoxide will act as a ligand, तो of course वो homolaptic ही होंगे, है ना. For example, nickel carbonyl 4, iron carbonyl 5. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ज्योमेट्री स्ट्रक्चर्स ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ VBT ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? 0. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਆਇਰਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 26. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ Fe ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ 5, ਬੱਚੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ FeCO5 ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 26. ठीक है. आप लिखांगे आर्गन 18,
4s2 3d6. So which is, this is your 3d6, then 4s2 and then 4p. So ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ न्यूट्रल है थे, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बट कार्बोनाइल इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और सब दी पेयरिंग करूंगा 6 ਤੇ 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 फाइन। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ कार्बोनाइल है ਉਹ 5 ऑर्बिटल्स ਦੇ ਨਾਲ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेंगे ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ हाइब्रिडाइजेशन हो जूगी dsp3। शेप की होगी बच्चे ट्रिगोनल बाय पिरामिडल। सो सेम उसी तरीके नाल तुसी शेप शो कर सकते हो कि दिस इज योर आयरन ते ट्रिगोनल बायपिरामिडल, सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स लिगेंड्स अटैच करते कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, सो बिल्कुल उसी तरीके नाल एक्सप्लेन करना है जिद्दां आपां नॉर्मली एक्सप्लेन करते हैं। इन्हां दी शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ सेम है। सो देखो डायमैग्नेटिक होया, लो स्पिन होया एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होया, सो कोई फर्क नहीं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके नाल एक्सप्लेन होगा जिवें आपां नॉर्मली करते हैं। हुण आपां आने हैं जेड़ा पॉइंट आपां कर रहे हैं, जो टॉपिक है अपना बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड्स। सो देखो लवे, सो हुण इत्थे की होगा अपने कोल नॉर्मल बॉन्डिंग की हुंदी है। देखो जो मेटल है ਉਹਦੇ ਕੋਲ empty d orbitals ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ empty orbitals ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ d orbitals ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैक बॉन्ड कर लेंगे विद लिगेंड्स। याद है अपन स्टार्टिंग कवर किया सीगा, एक सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स सीगे, एक सिग्मा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स सी, एक पाई पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स सी। ठीक है ना, जिन्हों अपन सिनर्जिक बॉन्डिंग भी नाम दिता सीगा। ठीक है, सो ये ओवली बॉन्डिंग की अपन गल कर रहे हैं। सो देखो हुण नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो firstly there is a coordinate bond formation by donation of lone pair of electrons from ligands to मेटल, फ्रॉम लिगेंड्स टू या तो मेटल ते या फिर मेटल आयन। ठीक है, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। सो एक केड़ा बॉन्ड हुंदा बच्चे, एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, सो ये एक नॉर्मल चीज है, जेड़ा लिगेंड है वो अपने लोन पेयर्स नु मेटल नु कोऑर्डिनेट कर देगा। ठीक है ना, सो दिस इज अ नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड। हाँ जी, now there is a back donation of electrons from the metal ion या atom, from the metal atom या ion to the empty anti-bonding orbitals, to the empty anti-bonding orbitals. There is a back donation of electrons from the metal atom or ion to the empty anti-bonding orbitals of the ligand, ठीक है। So this is a pi bond, this is a pi बॉन्ड। ठीक है, सो एक पाई बॉन्ड बन जाऊगा बच्चे जिन्हें कितने बनया हुआ है। ठीक है, नाल ही कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो पहला ये सुनो कि ये किवें बनया। देखो बच्चे हुण देखो ध्यान नाल, आपां +1 केमिकल बॉन्डिंग च एक कॉन्सेप्ट करते हैं
ਕਿਹੜਾ MOT ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਉਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ +1 ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ MOT ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਉਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ 6, ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ 8, ਸੋ 6 + 8 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 14 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਮਾ 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 then sigma star 2s2। so याद होगा सबनों, ठीक है। then we fill sigma pi के sigma pi, then we fill pi 2px and pi 2py 2 and 2 फाइन, ठीक है। देन वी फिल सिग्मा 2pz2। सो देखो ना, देख 2 4 6 8 12 2 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके, जबकि हले अपने पाई स्टार ते सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स बिल्कुल खाली पे है। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz ये बिल्कुल खाली पए ऑर्बिटल्स। सो ये किहड़े ऑर्बिटल्स है, एंटी बॉन्डिंग, याद है कि नहीं। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ BMO ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਬੌਂਡ ਕਰ ਲੂਗਾ, बॉन्डिंग कर लूंगा, ठीक है ना, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। क्लियर, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। देखो हुन पढ़ो, देयर इज अ बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल एटम और आयन टू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड, ठीक है। डन जी, क्लियर। नाउ इधर नाल ही पॉइंट नोट कर लो, दिस इज कॉल्ड so लिखो दे, this is called back bonding, this is called back bonding or synergic bonding, ठीक है। लिखो, it increases the stability of the complex। नेचुरल एनर्जी बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो चुका क्योंकि सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड हो चुका, सिग्मा दे नाल एक पाई बॉन्ड भी अटैच हो चुका, इस करके बॉन्ड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी बच्चे, ठीक है ना। सो इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसी करके लिखो, आप कहते हैं, लिखो that is why such ligands ਕਿਹੜੇ ਲਿਗेंड्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਬੈਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ that is why such ligands ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਬੈਕ ਬੌਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਾਰਬੋਨਾਈਡਸ, ठीक है। दूसरा बच्चे साइनाइड, फाइन। तीसरा मेजर, वैसे अपन ਨੂੰ क्वेश्चन थ्योरी ਵਿੱਚ कार्बोनाइल ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ, MCQs ਜੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ साइनाइड ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। बट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ MCQs ਦੀਆਂ ਬੁక్స్ ਚ NO+ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋਨੀਅਮ ਆਇਨ, ठीक है। सो बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल, साइनाइड ਤੇ NO+। सो दैट इज व्हाई सच लिगेंड्स, ठीक है, लिखो, आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। सो इसे करके इन्हां लिगेंड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहते हैं बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि एक ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है ना। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ਦੇ ਨਾਲ एक पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਨਰਜਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स योर कॉम्प्लेक्स बिकम्स मोर स्टेबल, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਲਿਗੈਂਡ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ, यानी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड केड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूजे नंबर ते नोट करोगे तो साइनाइड हुंदा है, इसी करके ही एक्सट्रीम लेफ्ट पे पए ने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द लिगेंड्स है बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि इनकी दी बॉन्डिंग बिकम्स वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे। सो बच्चे दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। आज आपां ने crystal field splitting की थी in case of tetrahedral complexes and in case of square planar complexes, then we did कि केड़े-केड़े factors दे ऊपर splitting depend करती है, ठीक है, and then अपन ने अलग तो एक topic नाल cover कर लिया known as bonding in metal carbonyls, ठीक है। so जिन्ना अपन ने हुन तक पढ़ लिया, ठीक है, this is the portion that will be included in your test, ठीक है ना। बाकी डिटेल्स टेस्ट दिया मैं तुम दे दांगा या इनफैक्ट दे चुके हैं, ठीक है, एंड ठीक है। सो इथों तक चंगी तरह बच्चे सारा चैप्टर रिवाइज कर लो। अगेन व्हाट आई रिपीट इज, देखो हुन जेड़ा साडा टेस्ट होएगा ओदे विच की कुछ इंक्लूड होगा, बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है, सारियां बेसिक डेफिनेशंस, नंबर 2 नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आइसोमेरिज्म नु आपां एक बार ड्रॉप कर दिंने हैं फ्रॉम द थ्योरी टेस्ट, द रीजन बीइंग कि आइसोमेरिज्म हुन जो नवा उन्होंने सिलेबस बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आउट ऑफ सिलेबस है, वैसे ਆਪਾਂ ने कवर कर लिया बट ਆਪਾਂ टेस्ट इंक्लूड नहीं करांगे। सो बेसिक डेफिनेशंस, नॉमेनक्लेचर, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, CFT, VBT एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड्स, मींस जिन्ना भी ਆਪਾਂ ने हुन तक कवर कीता है आइसोमेरिज्म ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ सारे पोर्शन ਦਾ टेस्ट होएगा, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, थैंक्स।